Hello students, this time we are studying chapter 4 from your book Flamingo, and the chapter is The Rat Trap. As in the first video, you have read about the theme of this story and also the two passages from this chapter. As this man who is the rat trap seller in this story, he is extremely confused to see the appearance of this world, and finally he was struck by the idea that the whole world about him, the world with its land and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. Finally he realized that the world which is which has spread before him with its land and seas, with cities and villages, it is nothing more than a big rat trap. क्यों यहाँ पे उस संसार को, इस संसार के अंदर के परिदृश्य को एक रैट ट्रैप से क्यों तुलना कर रहा है, इस चीज़ को हमें यहाँ पे समझना है स्टूडेंट्स. इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज़ दैन टू सेट बेड्स. बेड्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स फॉडर, चारा, भोजन फॉर पीपल. एंड the people struggles in this world, the people wanders here and there in this world only to get fodder for themselves. They never exist for any other purpose. Only they move, only they came out from their house to get the food for them. So they try to earn everything to get food and their requirements. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bed, it closed in on him, and then everything came to an end. He says that the Father offers lot of riches and joys along with shelter and food and heat and clothing to the people. In the same way, like that, the rat trap also offered cheese and pork. Pig के मीट को pork बोलते हैं, pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bed, और जैसे उस रैट ट्रैप के द्वारा ऑफ़र की हुई चीज़ या पॉर्क को पाने के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्रिएचर जब उसके प्रति टेम्प्टेड होता है, अट्रैक्ट होता है, जैसे उस फॉडर को टच करता है, इट क्लोज्ड इट ऑन हिम, उसी में बंद हो जाता है, अर्थात उसी में ट्रैप्ड हो जाता है. एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड. और जैसे उसमें ट्रैप्ड हो जाता है, फंस जाता है, सब कुछ वहीं पे द एंड पे आ जाता है, वहीं पे उसका द एंड हो जाता है, वहीं पे उसकी सारी रियलिटी, सारी व्यवस्था वहीं पे ख़त्म हो जाता है. द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, so it gave him unwanted joy to think of it in this way. He says that this world has never been very kind to those men who is very needy in this world, and it always
gave him unwanted joy to think about this way, and also it became cherished pastime of his during many dreary plodding to think of people he knew who had led themselves he caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bed. कह रहा है कि जो पास टाइम बस समय जो उसका व्यतीत हो रहा है, नष्ट हो रहा है, और बहुत से ऐसे थके हुए डरे हुए रास्तों से वो चलता रहता है, वो व्यक्ति भागता रहता है, वो निश्चित तौर पर उसे नहीं मालूम रहता है कि घूमते घूमते इस अपने फॉर्डर के लिए, अपने फूड के लिए कहीं न कहीं से वो उस डेंजरस ट्रैप में जा कर के कहीं न कहीं से पकड़ा ही जाएगा, और निश्चित तौर पर जो भी वो बेड उसके चारों तरफ सर्कल है वो उसी में जाकर कहीं न कहीं से ट्रैप हो जाएगा। अर्थात कहीं न कहीं से ये सारी चीज़ों का ट्रैपिंग होना ही होना है इन दिस वर्ल्ड में, और ये चीज़ जो है आगे भी आपको स्टोरी में मिलेगा कि निश्चित तौर पर पीपल्स की सारी भाग दौड़, सारी व्यवस्था, सारी उस रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति के लिए भागते भागते कहीं न कहीं से कहीं जाके फंस जाता है, उलझ जाता है। और यहाँ पे जो राइटर ऑफ सेलर है वो भी सेम इसी कंडीशन में यहाँ पे उलझ चुका है, वो यहाँ से बाहर निकलने का उसके सामने ऑप्शन नहीं दिख रहा है। One day evening he was trudging along the road. He caught sight of a little grey cottage by the roadside and he knocked on the door to ask shelter for the night. एक दिन की बात है, at the evening time this man was walking along the road and now he saw a grey cottage by the roadside, so he came there and knocked on the door. He also asked shelter for the night, nor was he refused. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, और फिर वो रिफ्यूज भी नहीं हो पाया, और जो उसकी सौर फेसेस थी वो निश्चित तौर पर ऑर्डिनरली उससे मिली भी नहीं। जो अंदर से एक ओनर था वो सौर फेस विद अ सौर फेस वो आया, और हु हैज़ नो वाइफ नो चिल्ड्रेन, ही वॉज ऑल्सो हैप्पी टू फाइंड अ मैन एज ही वॉज लिविंग देयर alone. So immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. He knew that this guest is really in hunger, so the man understood the requirement of the guest and the host prepared porridge. Porridge में दलिया होता है, porridge for him, and he also gave him the supper, means dinner. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. और फिर उसे जो है पॉरिज देने के बाद फिर उसने बड़ा अपना टोबैको रोल निकाला, और फिर उसने दोनों ने मिल कर के टोबैको पाइप से टोबैको का स्मोकिंग किया। फिर फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, फिर अपना एक पुराना प्लेइंग कार्ड निकाला एंड प्लेड मजलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और होस्ट और गेस्ट दोनों मिलकर के देर रात तक कार्ड का जो गेम मजलिस है उसे वे खेलते रहे। The old man was just as generous with his confidence as with his porridge and tobacco. जो ओल्ड मैन था वो भी काफ़ी जनरस था अपने कॉन्फिडेंस को लेकर, एंड
अपने पॉरेज और टोबैको के साथ काफ़ी जनरसली सब कुछ उसको प्रोवाइड किया। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस that in his days of prosperity his host had been a crofter at a Ramsjo iron ore and had worked on the land. Now that he was no longer able to labor, it was his cow which supported him. As that bossy यहाँ पे काऊ को कहा गया was extraordinary. She could give milk for the creamery. Creamery means काफ़ी अच्छे तरीके का दूध every day. And last month he had received all of 30 kroner in a payment. Kroner जो है एक स्वीडिश करेंसी है, स्वीडन का एक यूज होने वाला करेंसी है, इसको क्रोनर बोलते हैं। तो उस ओल्ड मैन ने उस गेस्ट को बताया कि जो उसका होस्ट है अर्थात ओल्ड मैन, वो जब यंग था तो रामजो आयरन वर्क में क्राफ्टर का काम करता था और अब उसका एज, उसकी शरीर उतना मेहनत करने के लायक नहीं रह गई है, अब उतना लेबर नहीं कर सकता है। इसलिए इस समय अब उसकी जो एक गाय है वही उसको सपोर्ट करती है। दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी, और जो गाय है बॉसी इसको कह रहा है वो काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी है, निश्चित तौर पर एक्स्ट्रॉर्डनरी उसके लिए है क्योंकि वो भी उसको बहुत सपोर्ट करती है और उसका जो दूध है काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का है। और इस तरह से बताया कि दूध उसका ये सब बेच करके और उसने लास्ट मंथ उसने 30 क्रोनर, स्वीडिश करेंसी है, 30 क्रोनर पैसे उसने कमाया। ये सारी बात उस होस्ट ने रेड ट्रॉप सिलर को सारी बातें बताया। The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10-kroner bills. These he held up before the eyes of his guest, nodding unknowingly. And then stuffed them back into the pouch. जो स्ट्रेंजर है वो स्ट्रेंजर he was looking incredulous for the old man, and old man at once moved from the place he went to the window. He took down a leather pouch, एक लेदर का पाउच, एक लेदर का झोला निकाला और फिर जो उसको विंडो फ्रेम पर लटकाया हुआ था उसको उतारा और फिर उसमें से उसने 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल में से नोट से मतलब है नोट, उसने 3 मुड़े हुए 10 के 3 क्रोनर्स नोट, 10 क्रोनर्स के 3 नोट्स उसने उस झोले में से निकाला। दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और उस तीनों नोटों को उस गेस्ट के सामने उसने लाया, दिखाया, आश्वस्त किया कि देखो मैं ये सब करके ये ट्रेन क्रोनर के 3 नोट यानी 30 क्रोनर मैं अर्निंग कर लिया। नॉडिंग नोइंगली एंड देन स्टफड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर ये सब बताते हुए उसको और वापस फिर उसी पाउच में, उसी बैग में, उसी झोले में उसने फिर से उस
पैसों को रख दिया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स वी कैन से दैट द ओल्ड मैन वाज showing everything to the guest very honestly, and here this man was observing everything very cleverly.